A very good morning to all of you. So it is the class of economics. SST के अंदर आपका जो सब्जेक्ट लग रहा है economics. आज हमने economics की क्लास को स्टार्ट किया है. It is for the first time we are going to start our chapter of this topic, right? And that too online only. हमने पहले डिस्कस किया है सब्जेक्ट के बारे में इन ऑफलाइन क्लास. इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में मैंने आपको आपकी क्लास में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, राइट? अभी हम डिस्कस करेंगे इसी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 को इन डिटेल. Manjeet, I will clear out your query after few minutes. Till that, you just have to listen to me. Okay, in case you are having any doubt, you will be given some time and then after we will clear out all your doubts. Okay, students, so just have a look. Chapter 3 आपका money and credit है. हम इकोनॉमिक्स की बुक में सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, क्योंकि ये चैप्टर आपकी बुक का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा रिलेटेबल चैप्टर है. इसको हम अपनी रियल लाइफ से बहुत जल्दी लिंक अप कर पाएंगे. प्लस हम इसको स्टार्ट इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आपका ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट बेसिकली मनी से रिलेटेड ही होता है. इकोनॉमिक वर्ड ही मनी से रिलेट हो जाता है. तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे मनी से रिलेटेड चैप्टर से. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मनी क्या है, मनी कब इन्वेंट हुआ, मनी से पहले सिस्टम कैसे चलता था. आप इमेजिन कीजिए, एक वर्ल्ड ऐसा भी होता था, एक टाइम ऐसा भी चल रहा था जब पैसा ही नहीं था, मनी नहीं था. क्या अभी आज हमारा एक दिन भी विदाउट द ट्रांजैक्शन ऑफ मनी पॉसिबल हो सकता है? डेफिनेटली नो. हम मॉर्निंग में उठते से ही ब्रश से स्टार्टिंग करते हैं, राइट? ब्रशिंग आवर टीथ, जिसमें भी मनी इन्वॉल्व है. पैसा नहीं होता तो ना तो टूथब्रश आता और ना ही टूथपेस्ट आता. और रात को सोने तक हमारी सारी एक्टिविटीज किससे लिंक्ड अप है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज लिंक्ड अप विद मनी. तो मनी से रिलेट करके हमें अपना सारा चैप्टर आगे करना है. जस्ट हैव अ लुक. Chapter 3, Money and Credit. First topic, money as a medium of exchange. It means we are discussing that what is money and how it is used as a medium of exchange. Just have a look what is written over here. The use of money spans a very large part of our everyday life. यानी मनी का यूज हमारी एवरीडे लाइफ में एक काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है, राइट? Look around you and you would easily be able to identify several transactions involving money in a single day. आपको क्या करना है? You just have to look around your activities. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, उठते ही मॉर्निंग में सबसे पहले हमने ब्रश किया तो it is related with money. Okay, now just give me any 2-3 examples of the activities where you can relate that this activity of your life depends upon money. Raise your hands. I will be allowing you to unmute yourself and give the answers. Yes, very good. I can see some of the students are ready. Yes, Yash Modi. Yash, I have unmuted you from my side. Unmute yourself. Yes, good morning, ma'am. Very good morning. Ma'am, we use money in food. Yes, when we in the morning, just after performing few activities, we need breakfast, right? And that is also because of money. Okay, one more. Ma'am, one more. मैम जो हम स्टडी करते हैं मैम वो भी फोन के से होती है, तो मैम उसमें भी मैम जब रिचार्ज करते हैं मनी यूज होता है. बिल्कुल, very good. The online class we are taking, this is also because of money only. फोन में रिचार्ज कब करवाया? जब we were having money. Okay, now one more example. Astha will be giving. Yes, Astha. Yes, Astha, I have unmuted you from my side. You can give the answer.
Okay, I guess there is some audio problem. Hello. Yes, Astha, you are now audible. Hello. Good morning, ma'am. Very good morning, Astha. Ma'am, money is used in many ways. As the bed where we sleep is also bought by money. As the fan underneath we sleep is also bought about money. It's all about money today in today's life. Yes, very good. Each and everything that we are using is because of money only, right? We are having different things with us, and all because of money. So when we will just look around us, we will find that all the things, all the luxurious items we are using are with us because of money. If you are sitting under a fan, if you are sitting under a AC, if you are sitting under a light, if you are having a study table, a bed, a pillow, a bed sheet, a blanket, each and everything is just because of money. Now just have a look. आगे देखिए. Can you make a list of these? Definitely yes. We can definitely make a list of several transactions in which money is involved, right? Now just have a look. In many of these transactions, goods are being bought and sold with the use of money. ये कह रहे हैं इनमें से maximum transaction ऐसे हैं जिसमें आपने चीजें खरीदी अगर है तो you have purchased it by taking the help of money, and the one who has sold you उसने भी क्या किया, आपसे बदले में money ले लिया. Now just have a look. In some of these transactions, services are being exchanged with money. कुछ में तो goods का exchange हुआ है, कुछ में services का हुआ है. For example, when I am teaching you for it, you have given a fees to your school. तो ये जो मैंने आपको service दी, this service is also possible because of money. अभी आपने देखा है COVID-19 में अगर कोई बीमार हो गया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल तक जाना है, and if the person want to take the service, he or she will have to pay some money. It means exchange के लिए there is always a need of money. Money के बिना ना तो goods exchange हो पाएंगे और ना ही service exchange हो पाएंगे. आगे देखिए. For some, there might not be any actual transfer of money taking place now, but a promise to pay later. कुछ ट्रांजेक्शन्स हमारी लाइफ में ऐसे भी होते हैं जहां पे हमने अभी तो मनी का ट्रांसफर नहीं किया है, बट हमने एक प्रॉमिस किया है दैट वी विल बी पेइंग इट इन नियर फ्यूचर. फॉर एग्जांपल, स्कूल में जब आप आते हैं, जब 10th का नया सेशन आपका स्टार्ट हुआ, तो क्या फर्स्ट डे पे स्कूल ने आपसे फीस मांग ली? डेफिनेटली नो. बट आपके पेरेंट्स का एक इम्प्लाइड प्रॉमिस था दैट यस वी विल बी पेइंग द मनी इन फ्यूचर. सर्विसेज तो एक्सचेंज होनी शुरू हो गई है, बट मनी जो है वो फ्यूचर में पे कर दिया जाएगा. जब हम बस में बैठते हैं तो क्या हमें टिकट लेके बैठना होता है? रिजर्वेशन वाले में तो यस, बट अगर हम रोडवेज बस में नॉर्मल 2 आवर्स की जर्नी कर रहे हैं तो हम बैठ जाते हैं, बस सर्विस देना स्टार्ट कर देती है, लेकिन पेमेंट होता है हमारा कुछ देर बाद में. यानी कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे भी होते हैं जिसमें मनी फ्यूचर में देने का एक प्रॉमिस होता है. Okay, if you want to ask something, Dan, keep your hand raised, else just lower down your hands. If you are not having any question, then just lower down your hands. Okay, all right, आगे देखिए. Astha, do you want to ask something, beta? Just give me a second. Till that, other students just go with paragraph number 1. Okay, no questions. Okay, all right. Now just have a look. Have you ever wondered why transactions are made in money? The reason is simple. A person holding can easily exchange it for any commodity or service that he or she might want. ये कह रहे हैं, क्या आपने कभी ये वंडर किया, क्या आपने कभी ये इमेजिन किया कि सब कुछ पैसे से ही क्यों एक्सचेंज हो रहा है? क्यों आपको कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस लेने के लिए सामने वाले को मनी ऑफर करना पड़ता है? इसका रीजन बहुत सिंपल है कि जिस पर्सन के पास मनी है वो मनी देके अपनी जरूरत की जो चीजें हैं वो सामने वाले से एक्सचेंज कर सकता है. नाउ तो यू आर गोइंग विद द न्यूज. आपने देखा होगा इवन पीपल आर एक्सचेंजिंग ऑक्सीजन फॉर मनी, राइट? पैसे से तो ऑक्सीजन भी बिक रहा है. तो इट मीन्स बेसिकली although money can't buy each and everything, but money can buy almost all the physical items, right? जो भी चीजें
है, जो भी मूवेबल गुड्स है, इमूवेबल गुड्स है, जो सर्विसेज है, दैट मनी कैन बाय। तो ये कह रहे हैं कि मनी को होल्ड करने वाले पर्सन के लिए इट विल बी क्वाइट इजी टू टेक एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट। तो जब वो कोई सर्विस दे रहा है तो वो बदले में भी क्या ले रहा है, मनी ही ले रहा है। नाउ जस्ट हैव अ लुक, does everyone prefers to receive payment in money and then exchange the money for things that they want? ये हम सब कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स जो अर्निंग है वो क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, तो बदले में वो क्या लेके आते हैं, मनी लेके आते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स, राइट। और वो इस मनी को यूज करके बदले में अपने नीड की सारी चीजें खरीद लेते हैं। So that is only what is written over here. Now just have a look. Take the case of a shoe manufacturer. He want to sell shoes in the market and buy wheat. Shoe manufacturer की बात करते हैं, वो shoes बनाता है। अब वो shoes बना के क्या करता है, shoes को market में sell out करता है क्योंकि उसको wheat चाहिए। तो wheat खरीदने के लिए उसको money की requirement होगी, वो money कैसे आएगा, shoes को sell out करके आ जाएगा। तो just have a look. The shoe manufacturer will first exchange shoes that he has produced for money. जो shoes उसने बनाए वो शूज को मनी के साथ एक्सचेंज करेगा, यानी किसी को शूज दे देगा और शूज के बदले में क्या ले लेगा, मनी ले लेगा। एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर व्हीट। अब वो क्या करेगा, उस मनी को किसी को दे देगा और बदले में उससे क्या ले लेगा, व्हीट ले लेगा। क्वाइट सिंपल ना। जैसे कि मैं अपनी सर्विसेज स्कूल को दे रही हूँ, बदले में स्कूल से ले लेती हूँ मनी। अब इस मनी को यूज करके मेरी जो जो नीड्स है उसको फुलफिल कर लेते हैं। अगर बात करें आपके फादर की, तो वो ऑफिस जाते हैं, वर्क करते हैं, बदले में लेके आते हैं मनी। उस मनी से वो आपके लिए जो जो चीजें आपको चाहिए होती है वो सारी परचेज कर लेते हैं। तो हम मनी को लेते हैं और मनी से ही हम बाकी सारी चीजें एक्सचेंज करते हैं। नाउ जस्ट हैव अ लुक। Imagine how much more difficult it would be if the shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without the use of money. अब आप इमेजिन कीजिए, अगर शू मैन्युफैक्चरर को क्या करना होता, शूज बनाया और उस शूज को मनी के बिना डायरेक्टली व्हीट ओनर को ले जाके देना है और उससे बदले में व्हीट लेना है। अब ये सुनने में तो इजी लग रहा है कि शू प्रोड्यूस कर दो और शू को लेके चले जाओ व्हीट मैन्युफैक्चरर के पास और जाके उसको बोल दो, भैया टेक दिस शू एंड गिव मी सम व्हीट इन एक्सचेंज ऑफ दिस शू। बट व्हाट इफ द मैन्युफैक्चरर ऑफ व्हीट डोंट वांट शूज? आप इमेजिन कीजिए कि शू मैन्युफैक्चरर वहां गया, उसने बोला भैया मुझे व्हीट चाहिए, मेरे पास शूज है, आप शूज ले लो, बदले में व्हीट दे दो। और वो सामने वाला बंदा कह दे, भैया आई डोंट वांट शूज, आई एम ऑलरेडी हैविंग अ पेयर ऑफ शू, आई डोंट वांट एनी शू। अब आप व्हीट कैसे अरेंज करेंगे? आपका व्हीट मैन्युफैक्चरर तो शू लेने के लिए रेडी नहीं है एंड यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स टू बी गिवन टू हिम। तो ऐसे केस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जो कि हमारा जो फॉर्मर बार्टर सिस्टम चल रहा था उसमें आती थी, हम अभी आगे पढ़ेंगे, राइट। तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। नाउ जस्ट हैव अ लुक क्या लिखा हुआ है। द सेम थिंग इज रिटन ओवर हियर, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। He would have to look for a wheat growing farmer who not only wants to sell wheat but also wants to buy the shoes in exchange. अगर मनी नहीं होता तो शू मैन्युफैक्चरर को एक ऐसा फार्मर ढूंढना पड़ता जिसके पास व्हीट है, वो व्हीट सेल तो करना चाहता है और बदले में शूज भी परचेज करना चाहता है। That is, both parties have to agree to sell and buy each other's commodity. This is known as double coincidence of want. Highlight कर लीजिए। इसका मतलब दोनों पार्टीज के बीच में वॉन्ट्स का डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए, यानी कोइंसिडेंटली ऐसा होना चाहिए कि जो सामान मेरे पास है उसकी जरूरत आपको हो और जो आपके पास है उसकी जरूरत मुझे हो। अगर मनी नहीं होता और मेरे पास यहाँ पे इकोनॉमिक्स की नॉलेज होती, आप मुझे कहते मैम टीच अस इकोनॉमिक्स, और मैं कहती आप मुझे बदले में क्या दोगे, आप कहते माय फादर इज अ फार्मर, ही इज ग्रोइंग राइस ऑन हिज फील्ड, वी विल बी गिविंग यू राइस इन रिटर्न। मैं कहती आई डोंट नीड राइस, आई एम ऑलरेडी हैविंग राइस एट माय होम एंड आई प्रेफर व्हीट। आप कहते व्हीट तो नहीं है पापा के पास, पापा तो केवल राइस ही उगा रहे हैं। तो ऐसे में हमारे बीच में ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता, राइट। जैसे कि यहाँ पे इस इमेज में देखिए, द शू मैन्युफैक्चरर क्या कह रहा है, आई विल गिव यू शूज फॉर योर व्हीट। शू मैन्युफैक्चरर ने व्हीट मैन्युफैक्चरर को कहा मैं तुम्हें शूज दे दूंगा व्हीट के लिए। व्हीट मैन्युफैक्चरर का रिप्लाई सुनिए, आई डोंट नीड शूज, आई नीड क्लोथ। ये कह रहा है मुझे तो शूज चाहिए ही नहीं, मुझे तो क्या चाहिए, कपड़े चाहिए। तो ऐसे में प्रॉब्लम आ गई।
नाउ जस्ट हैव अ लुक. ये नीचे एक पॉटर आपको क्या कह रहा है, आई वॉन्ट शूज बट आई डोंट हैव वीट. इसको शूज तो चाहिए लेकिन इसके पास वीट नहीं है. तो अब सामने वाला शूज वाला तो शूज तभी देगा जब बदले में उसको वीट मिले. तो ऐसे में एक्सचेंज थोड़ा सा टफ हो जाएगा. नाउ हैव अ लुक. What a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy. In the barter system, where goods are directly exchanged without the use of money, double coincidence of wants is an essential feature. Barter system कौन सा system होता है? क्या किसी को पता है barter system के बारे में? Will anyone give the answer? What is barter system of exchange? Okay, that's great. Yash Modi will give the answer. Yes, beta. मैम बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम मैम इन विच मैम हम कोई चीज लेते हैं और उसके बदले उसको कोई चीज देते हैं. मैम मनी का कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता उसके अंदर. Bilkul, very good. Without the using money, we just exchange commodities. Okay, Parth will tell us something more about the system. Yes, Parth. Good morning, ma'am. Very good morning. Ma'am, it is a type of system in which if a person has an excess of an commodity and he requires another commodity, so he may exchange with someone who has the excess of the other commodity, and hence they exchange their items. Very good. The system where if we are having any commodity in bulk, we can just exchange it with any person who needs our commodity and who is having the commodity we need, right? So it will be treated as barter system of exchange. Quite tough रहेगा क्योंकि इसमें ये double coincidence of want का present होना जरूरी है. Now just have a look. In contrast to barter system, right? In an economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminates the need for double coincidence of want. ये कह रहे हैं अगर हम ऐसी इकोनॉमी की बात करें जिसमें मनी है तो मनी तो सबको चाहिए होता है. Why? Because आप देखिए मनी फ्रॉम अ चाइल्ड जिसको पता भी नहीं है पैसा क्या होता है, एक आप 1 ईयर 2 ईयर के चाइल्ड को, 1 ईयर तो बहुत छोटा हो गया, उसको भी मनी पता है, राइट? कोई पैसे देंगे तो वो खुश हो जाएगा. तो मनी तो वहां से लेके ईच एंड एवरी इंडिविजुअल नीड, क्योंकि हम सबको ये चीज का रियलाइजेशन है दैट इट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग जिससे हम चीजों को एक्सचेंज कर पाएंगे. तो ऐसी इकोनॉमी में ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती है. नाउ जस्ट हैव अ लुक. मॉनेटरी इकोनॉमी की बात करें तो it is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy his shoes and at the same time sell him wheat. यानी अब मनी की प्रेजेंस में शू मैन्युफैक्चरर को ऐसे फार्मर को ढूंढने की जरूरत नहीं है जो उसका वीट खरीदे और जो उसका शूज खरीदे और बदले में उसको वीट दे दे. What he has to do? All he has to do is find a buyer for his shoes. He simply have to find a buyer for his shoes. Once he has exchanged his shoes for money, he can purchase wheat or any other commodity in the market. Since money acts as an intermediate in the exchange process, it is called as a medium of exchange. मनी वो इंटरमीडिएट है, मनी वो थिंग है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है इसको यूज करके आप कुछ भी दूसरी चीज परचेज कर सकते हो. बाय गिविंग समवन मनी वी कैन परचेज द थिंग्स दैट ही और शी इज हैविंग, राइट? तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है. 2 हाईलाइटेड पॉइंट्स आए. नंबर 1, बार्टर सिस्टम का बेसिक फीचर था, बेसिक नेसेसिटी थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट, एंड मनी का बेसिक फीचर है दैट मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. नाउ जस्ट हैव अ लुक. आगे अगर हम बात करें मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, मनी की बात करते हैं, मनी की मॉडर्न फॉर्म्स की बात करते हैं. जस्ट हैव अ लुक. We have seen that money is something that can act as a medium of exchange in the transactions, right? Money कोई ऐसी चीज है जो transactions में medium of exchange के form में work कर सकती है. Before the introduction of coins, a variety of objects was used as money. कॉइन आने से पहले अभी तो हम पेपर नोट यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक करेंसी यूज कर रहे हैं, इवन वी आर यूजिंग द डिजिटल करेंसी, राइट? गूगल पे हो गया या फोन पे हो गया या पेटीएम हो गया, इससे हम डिजिटल करेंसी भी यूज कर रहे हैं. वॉलेट खाली है बट बैंक अकाउंट में पैसा है और मेरे पास मोबाइल फोन है तो आई कैन यूज द डिजिटल करेंसी ऑल्सो. कोड स्कैन करो और पेमेंट कर दो.
बट जब पहले ये सब नहीं हुआ करता था, पहले तो ये जो कॉइन्स भी आप देख रहे हो 10 रुपीज का, 1 रुपी का, 5 रुपी का, इस मेटल के नहीं होते थे। तो उससे पहले भी दूसरे फॉर्म्स ऑफ मनी हुआ करते थे, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। जस्ट हैव अ लुक। Before the introduction of coins, a variety of objects was used as money. For example, since the very early stages, Indians used grains and cattle as money. बहुत पहले बार्टर सिस्टम की बात करें तो फूड ग्रेन्स को मनी के फॉर्म में यूज किया जाता। मनी क्या है? जिसको एक्सचेंज करके आप कुछ और ले सको। तो पहले फार्मर्स क्या करते थे? फूड ग्रेन एक्सचेंज करके बदले में कुछ ले लेते थे। जिसके पास कैटल्स होती थी वो अपनी कैटल दे देते थे और बदले में कुछ ले लेते थे। जिसके पास क्लोथ होता था वो अपने क्लोथ दे देते थे, बदले में कुछ ले लेते थे। बट ये कमोडिटीज थी जिनको हम मनी का काम करवा रहे थे, इसको हम मनी नहीं कह सकते थे। आगे देखिए। Thereafter came the use of metallic coins, gold, silver, copper coins. Gold के, silver के, copper के coins आए, right? The phase which continued well into the last century तक चला। ब्रिटिशर्स ने हमें मनी इन्वेंट करके दिया था। Now just have a look. करेंसी की बात करते हैं। Modern forms of money includes currency, paper notes and coins. Modern form मनी की पेपर नोट है और कॉइन है। बेसिकली ये दो फॉर्म ही है मनी के। प्लास्टिक मनी और डिजिटल मनी मॉडर्न मनी है, लेकिन बेसिकली अगर मैं बात करूं पैसा क्या है, तो या तो नोट के फॉर्म में होगा आपके पास या कॉइन के फॉर्म में होगा। Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver and copper. ये कह रहे हैं पुराना पैसा जो था, पहले जो मनी आया था, वो बहुत प्रीशियस मेटल्स का बना हुआ होता था। ऐसे मेटल्स जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। लेकिन आज का जो मनी है वो इतने ज्यादा प्रीशियस मेटल से नहीं बना है, राइट? नाउ जस्ट हैव अ लुक। Unlike grain and kettle, they are neither of use every day. हम everyday use भी नहीं करते हैं उनको, वो grain जैसे भी नहीं। The modern currency is without any use of its own. इसका मतलब है modern currency ऐसी है जो ऐसी चीज से बनी है जिसका अपने आप में कोई बहुत बड़ा यूज नहीं है, बहुत मेजर यूज नहीं है, उसको ऐसी चीज से बनाया गया है। ठीक है, उसका यूज तो उसके ऊपर जो प्रिंट है, जो उसके ऊपर आरबीआई की सील है, उसका यूज हो रहा है बेसिकली, राइट? नाउ जस्ट हैव अ लुक। देन व्हाई इज इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? जब वो हम कह रहे हैं कि वो पेपर इतना यूजफुल ही नहीं है, प्लेन पेपर। अगर 2000 का नोट जिस पेपर से बना है, आप उस क्वालिटी का पेपर ले आइए, उस पे वैसी सेम टू सेम ड्राइंग कर दीजिए, तो क्या वो वैल्यूएबल होगा? नो, 20 रुपए में भी नहीं जाएगा, राइट? तो ऐसे में हम क्यों उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं? ऐसा क्या है? तो देखिए, it is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by government of the country. हम इसलिए इसको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दे रखी है, गवर्नमेंट ने पावर दे रखी है। डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के बारे में कोई कुछ जानता है? Anyone who will tell us anything about demonetization? Okay, Vikhyat will tell us. Yes, beta. Ma'am, Yes, Vikhyat. hello. Yes, you are audible. Yes, ma'am. Demonetization means, ma'am, in which the government bans some currency and then introduce some new currencies for the country. It happened in India in 2016. Yes, on 2016. Beta, can you name any one currency that was banned by government? Ma'am, 500 and 1000 notes were banned by our Honorable Prime Minister Narendra Modi. Yes, very good. Just have a look. अभी हमारा पैराग्राफ चल रहा है, why is it accepted as a medium of exchange, right? क्यों हम पैसे को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं? क्यों आरबीआई के सील के साथ जो 2000 का नोट आ रहा है, उस पेपर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन उसी क्वालिटी का सेम पेपर अगर मैं लेके आ जाऊं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस होते हैं that we have to accept it as a medium of exchange. Okay, beta, here I can see, just have a look. Wait, okay. तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑर्डर है। जिस दिन गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया कि इसको करेंसी के फॉर्म में यूज नहीं करेंगे, उसी दिन उस चीज की वैल्यू पेपर के खाली नोट जैसी हो जाएगी। अगर अभी हमें 1000 का पुराना नोट मिल जाएगा
तो खुशी होगी या गम होगा? डेफिनेटली गम होगा। ओ शिट, इसकी वैल्यू तो अभी 1000 है ही नहीं, ये तो मार्केट में ट्रांजेक्शन करवाने की केपेबल ही नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया कि इसको हम यूज नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ लीगल मनी, राइट? तो यही चीज यहाँ पे दी हुई है कि क्योंकि आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं why money is accepted as a medium of exchange, तो आपको बताना है because the currency is authorized by the government of the country has given the authority to use the currency as money in the form of medium of exchange. आगे देखिए, इन इंडिया में कौन मनी इशू करता है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक है ये हमारी कंट्री का, एक ही है, राइट? ब्रांचेस है बट बैंक एक ही है। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या करता है? नोट्स इशू करता है। एज पर इंडियन लॉ, नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। ये कह रहे हैं कि हमारे लॉ के अकॉर्डिंग आरबीआई के अलावा और किसी के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो करेंसी इशू कर सके। मोर ओवर, the law legalizes the use of a rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transactions in India. यानी लॉ कहता है, इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि कोई भी इंसान रुपी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। यानी अगर आप किसी शॉप पे जाते हो, आप शॉपकीपर को पैसा देते हो, तो शॉपकीपर आपको सामान देने से मना नहीं कर सकता, उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में रुपी को लेना ही पड़ेगा। नाउ नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज, यानी रुपीज के टर्म्स में जो पेमेंट हुआ है उसको कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता। Hence, the rupee is widely accepted as a medium of exchange. इसलिए हम रुपी को as a medium of exchange accept करते हैं, right? तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या क्या पढ़ा? अभी तक की क्लास में we have discussed that money is something that we are using in our day-to-day life. Each and every transaction, each and every activity of our life can be related with money. Whether it is brushing our teeth in the morning, whether taking a shower in the bathroom, whether we are just wearing our clothes, the clothes are also purchased because of money. Even when we are having the breakfast, we are having our classes, we are sleeping in the coolness of AC, all these things are because of money only, right? Then after we have discussed that if a person has produced anything, then for selling the commodity, he will just get money in exchange. And for purchasing any commodity, we will have to give money in exchange, right? Then we have discussed the example of shoe manufacturer with when he wanted to exchange the shoes with wheat, he faced a problem in the absence of money, but in the presence of money, it became quite easy for him. Then the two important things discussed are, number one, that barter system of exchange needed a double coincidence of font, and money is used as a medium of exchange. Then after we have discussed about currency. Currently we are using the paper notes and metallic coins, but before this people used to use kettles, grains in the form of money, and also they were using some precious metallic coins in the form of money, right? Now here, two different things I am telling you which you have to note down in your book. Number one, monetary system was introduced by Britishers in India. India में monetary system को लाने वाले कौन थे? Britishers थे. I am writing it here for you. Wait for a second. Okay, so I'm just repeating the point. Note it down. Money was introduced by Britishers, right? Money को कौन लेके आया? Money को Britishers लेके आए. उसके बाद में आपको जो एक और चीज लिखनी है वो ये, two modern forms of money, plastic money and digital money. Two modern forms of money. Number one, plastic money, and number two, digital money. Can anyone tell me what is plastic money?
Anyone? Okay, all right. Shreya will tell us. Yes, Shreya. Good morning, ma'am. Very good morning. Ma'am, the plastic money is which we use in our daily life without online transactions. Yes, the cards we are using, basically the debit card, credit card. Yes. Okay, Dave, will you tell us anything more about this? Okay, wait, Bharat will tell us. Yes, Bharat. Good morning, ma'am. Very good morning. Ma'am, plastic money is termed as cash card, credit card, or debit cards. Yes, the plastic cards we carry in our wallets, right? The debit card and credit card. अब इन दोनों में भी डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे. तो ये प्लास्टिक मनी है कि आपकी पेपर नोट्स आपके पास अगर नहीं भी है तो अगर आपके पास कार्ड है यू कैन स्वाइप इट आउट एंड यू कैन जस्ट डू एनी ट्रांजेक्शन, राइट. और डिजिटल मनी हो गया जो हमारे फोन पे अकाउंट पे या गूगल पे अकाउंट पे पेटीएम पे हम ऐड कर लेते हैं, वो जो मनी है दैट इज द डिजिटल मनी, राइट. सो यू हैव टू जस्ट कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड. नाउ हैव अ लुक. डिपॉजिट्स विद बैंक. हमारा कुछ मनी बैंक में भी तो डिपॉजिटेड रहता है. आपकी फैमिली के कुछ अकाउंट्स